ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ 12 ਮਹਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀਵ, ਦੂਸਰਾ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਨ। ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤਾਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜਗਿਆਸਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਨ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਚਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌਂ ਮਾਹਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 4 ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਾਗਾ, ਮਿਰਗਾ, ਮੱਛੀਆਂ, ਰਸੀਆਂ, ਘਰ ਧਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਨੇ, ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਵਾਦਲੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 4 ਪੈਸੇ। ਪਰ 4 ਜੀਵ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਵਰਖਾ ਪਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
अगले श्लोक में महाराज जिक्र किया, नानक सावन जे वसै चौं विछोड़ा हुए। चार जीव ऐसे जिन्होंने खुशी हुई ते चार ऐसे जिन्हों का विछोड़ा हो गया। किहड़े ने? गाई पुत्तां, कह लगे जिहड़े गावां दे पुत्त बलद ने। हुण जदों मींह पैंदा ते किसान की करदा है भी बलद नूं बैल नूं ਉਹ हल दे के जोत लैंदा है ते उहदे वास्ते बड़ी औखी गल हुंदी है, क्योंकि बैल बड़ा आलसी हुंदा है। बाबा कबीर जी ने एक बड़ा प्यारा बचन किया, वो आखदे ने भलिया अज समा तेरे कोल नाम जप लै, रब्बी गुणा नूं गा लै। क्यों? जदों तेरे कोल ये जुबान नहीं होवेगी, तेरे कोल ये शब्द नहीं होणगे, ज्ञान नहीं होवेगा, तो रब दे गुण किवें गावेगा? पशु बनया होवेगा, बैल ढग्गा बनया होवेगा, तेनू मालक ने अगे जोतिया होवेगा, तो फिर उदों तू आखेगा भी हुण गुण गा लवां, उदों नहीं गा सकता। चार पाँव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा परे है, तब कत मूंड लुकई है। उदों फिर उठदियां वहिंदियां मालक ने सोटा मारना है, तो उदों फिर मूँह कित्थे लगाएगा? अज मैं तेनों कहना भी परमात्मा का नाम जप है। गाई पुत्ता निरधना, जेड़े निरधन ने बेचारे, जिन्हां कोल धन नहीं, जिन्हां ने सवेर तो लैके शाम तक मजदूरी करनी तां घर प्रशादा बनना है, तो जदों मींह पैंदा है तो मींह दे विच कोई काम नहीं फिर कर सकते, उन्हां वास्ते ये साउण का महीना चंगा नहीं। तीसरा पंथी, पंथी कहते ने पंथ ते चलण वाला, पंथ कहते ने रस्ते नूं, मार्ग नूं। जिहड़े राही मुसाफिर हुंदे ने उन्हां वास्ते भी सफ़र करना बड़ा मुश्किल हुंदा है। जदों बरसात पैंदी है ते अज भावें रस्ते सौखे ने, पक्कियां सड़कां ने, पुराने समयां विच रस्ते नहीं सन हुंदे, मींह भर जाना ते कई कई महीने फिर रुकना पैंदा सी। तो जे कोई मुसाफिर राह में फस गया, उन्होंने किन्ने किन्ने दिन राह में रुकना पैंदा सी। कहणगे पंथी वास्ते, राही वास्ते भी बड़ा मुश्किल है। चौथा जिक्र करते हैं चाकर, गाई पुत्तां निरधना पंथी चाकर विछोड़ा होए। कह लगे चार ऐसे जीव ने जिन्हां दा विछोड़ा हो जाता है। नौकर, मींह पै रहा है, बरसात हो रही है, पर मालक का हुक्म है, नौकर ने काम करना पैना है, भावें वो पैंदे मींह विच करे पर उन्हें मनना पैना हुक्म। ये चार जीव ऐसे ने जिहड़े साउण का महीना आवे तो दुखी ने, पर चार जीव ऐसे ने जिहड़े सुखी ने। उन्हां विचों नाग, मच्छियां, मिर्ग ते कह लगे धनी लोग खुश हुंदे ने। महाराज ने बड़ी कृपा की, तेरे अंदर भी ये बिरती आ जावे। केड़ी? कह लगे वो नागां वाली, जेड़े खुड्डां नूं त्याग के बाहर निकलते हैं, भाव तो अपने आपे का त्याग करके मालक के चरणों में जुड़े। तेरे अंदर वो खेड़ा पैदा हो जावे। केड़ा? जेड़ा कह लगे मच्छियां दे अंदर है, पानी नाल प्रीत मच्छी रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसे मछली जल होए। तेरे अंदर वो चाह पैदा हो जावे। केड़ा? मिर्गां वाला, कि वो पानी नूं वेख के अत दे खिड़ पैंदे ने। तेरे अंदर भी किते नाम की बरखा होवे ते तेरे अंदर खेड़ा पैदा कर देवे। चौथी गल कह लगे जिवें धनी बंदा खुश हुंदा है, इस तरह तेरे कोल भी नाम धन होवे ते तू भी खेड़े विच होवें, खुश होवें, चढ़दी कला विच होवें। तेरे वास्ते सौण का महीना हमेशा ही बन जावे। ये तो 12 पौड़ियां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी, 12 माह की बाणी 12 पौड़ियां ने। हो सकता है कोई मनुख 12 पौड़ियां एक दिन में चढ़ जाए, तो हो सकता है किसी को सारी जिंदगी लग जाए 12 माह का पाठ सुनदे तां भी ना वो एक भी पौड़ी ना चढ़ पावे। कई ऐसे ने सारी जिंदगी हो गई उन्होंने 12 माह का पाठ सुनते हैं, पर उत्थे खड़े एक भी पौड़ी नहीं चढ़ी। कई ऐसे ने एक महीने में ही सारिया पौड़ियां चढ़ जाते हैं। वो चेत तो आरंभ होए सन, तो फिर ये भी मुड़ दोबारा फिर चेते लगे हुए नहीं।
फिर उन्होंने यात्रा सफल हो गई। हुण उन्हों जीवन सफल हो गया, वो मांग तक पुज गए तो उन्हों चलिया होया एक एक कदम भी सफला होया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावन बचन जीवन में कमा लिया। पर कमाया किवें? अज के पावन बचन में समझण का यत्न करांगे। गुरु अर्जन देव जी आदि ने सावन सरसी कामणी जीव इस्त्री साउण के महीने में आत्मक रस नाल भर जाती है। ऐसा की प्राप्त होता है? कहणगे चरण कमल स्यों प्यार। जदों परमात्मा के चरण कमलों नाल प्यार पै जाता है। दो शब्द ने चरण कमल। दुनिया के अंदर जदों भी कोई गल होंदी है फुलों की, उन्हां विचों मनुख गुलाब के फुल नूं बड़ी तरजीह देता है। पर माफ करना, धर्म की दुनिया अंदर कमल के फुल नूं वडियाया है। दुनिया अंदर मनुख तो किसी को पुछो भी सब तो प्यारा खूबसूरत फुल किहड़ा, उठेगा गुलाब का। पर जे तुसी बाणी नूं पढ़ोगे या धार्मिक ग्रंथां नूं विचारोगे तुहानूं पता लगेगा उन्हां विच बहुत ही उदाहरणां जिहड़ियां ने कमल के फुल। ते कमल के फुल विच की खासियत है? पहली गल तां इह, कमल के फुल की खेती नहीं की जाती। ये आप पैदा हुंदा है, अपनी हस्ती का मालक है। दूसरा ये निर्लेप रहिंदा है, चिक्कड़ विच पैदा हुंदा है पर कदी भी मैला नहीं हुंदा। तीसरा इहदा संबंध प्रकाश नाल है। सूरज चढ़ेगा तो निखिड़ना है, सूरज नहीं चढ़िया खिड़ेगा नहीं। संबंध प्रकाश नाल है। चौथा इहदी कोमलता बड़ी है, ये कोमल हुंदा है, इहदी सुंदरता बड़ी है, मन नूं मोह लैंदी है। तो कमल फुल विच ये वडियाइयां ने। तो जिहड़ा चरण शब्द है ये किसी शरीर के पैरों की गल नहीं की महाराज ने, क्योंकि गुरु पातशाह जी रूप रंग आकार तो रहत ने। गुरु नानक साहब का फैसला है कि अकाल पुरख परमात्मा थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं बना सकता, परमात्मा की कोई मूर्त नहीं बना सकता। उस अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर की हस्ती को कोई बयान नहीं कर सकता। भाव को अकाल पुरख परमात्मा को बनाया नहीं जा सकता। तो फिर उहदे चरण किहो जिहे होणगे? ते उहदे चरण की ने? पातशाह जी बाणी में ही समझा देंदे ने कि परमात्मा के चरण असल में उहदा उपदेश है। चरण तो भाव है उपदेश। आ गुरबाणी जिहड़ी है परमात्मा के चरण ने, भाव उपदेश। ते वो चरण किहो जिहे ने, उपदेश किहो जिहा है? वो है कमल फुल वर्गा, निर्लेप, कोमलता नाल भरिया, सुंदरता नाल भरिया। वो कदी मैला नहीं हुंदा। तीन चीज़ां समझण वालियां ने। पहली एक अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा आकार तो रहते। दूसरा उनका शब्द उपदेश वो भी आकार तो रहते। ते तीसरा जिहड़ी साडे अंदर जीवात्मा है वो भी आकार तो रहत है। इस आकार तो रहत जोत नूं, जीवात्मा नूं उस आकार रहत परमात्मा नाल जोड़न वास्ते किसी आकार रहत उपदेश की लोड़ है। ते वो है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी। बाणी सानूं जोड़दी अकाल पुरख दे नाल। तो बड़ी रहमत करते हैं गुरु पातशाह जी। सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार। जदों चरण कमलों नाल प्यार हो गया उदों जीवन में आत्मक रस पैदा हो गया। भाव जीव अंदर जगियासा पैदा हो गई। तो जगियासा की है? उनका रूप हो जाण दी, अकाल पुरख का रूप हो जाण दी जगियासा। एक बूंद जदों चलती है सफ़र तय करती, उनका मकसद की है चलन का भी मैं सागर हो जावा, सागर हो जाना। यही कारण है जिन्ना चिर सागर तो वख है उन्होंने बूंद ही आख्या जाएगा। एक बूंद सागर में समा गई, तुसीं कह नहीं सकते हम बूंद है, क्योंकि सागर ही है। उन्ना चिर जीव जीव ही रहेगा जिन्ना चिर उस परमात्मा परमेश्वर का जन नहीं बन जाता, सेवक नहीं बन जाता, दास नहीं बन जाता, उसका रूप नहीं हो जाता। उन्ना चिर जीव जीव ही रहेगा। पर जीव अंदर जगियासा पैदा होगी तो जन बनेगा। तो महाराज आखते ने
ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇ, ਪਿਆਰ ਬਣੇ ਤੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਹੈ, ਚੈਨ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਖਲਾਕ, ਈਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ, ਫਰੇਬੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ स्वर्ग नरक ते मैं रहे हो। सतगुर कै प्रसाद सतगुर की कृपा नाल मैं स्वर्ग ते नरक तो रह हो गया। चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद। इहदा मतलब चरण कमल नाल जुड़िया होया मनुख इन्हां चीज़ों तो उत्ते उठ जाता है, उन्होंने फिर लालसा नहीं रही किसी स्वर्ग की। इहदा मतलब चरण कमलों का प्यार किसी स्वर्ग तो भी चंगा है, ते नरक का डर उनके अंदर है ही नहीं। वैसे चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद। ते फिर जग्यासु ने पूछा बाबा कबीर जी ये दसो भी उस अवस्था में टिकिया होया किहो जिहा महसूस होंदा है। ते बाबा कबीर जी आखदे ने चरण कमल की मौज को कहूँ कैसे अनुमान, मैं अंदाजा ला के तेन की दस दियां भी वो अवस्था वो आनंद किहो जिहा है। चरण कमलों में जुड़े हुए मनुख की अवस्था किहो जी होगी। चरण कमल की मौज में कहूँ कैसे अनुमान। ते अगला उन्हें बचन किया कहणगे कह बे कोई शोभा नहीं देखा ही प्रवान। जिन्हें वेख्या है उन्होंने ही पता है, जिन्हें उन्होंने माणिया नहीं उन्होंने नहीं पता। जिन्हें मठियाई खाधी स्वाद उन्होंने पता है ना, जिन्हें मठियाई खाधी नहीं उन्होंने की पता। पर परमात्मा की बंदगी एक ऐसी चीज़ है। बाबा कबीर जी ने गूंगे ने गुड़ खा लिया, पूछा स्वाद दस किहो जिहा, किहने दस नहीं सकता। कह बे कोई शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। जुबान नाल बयान नहीं कर सकता, पर हाँ जिन्हें मान लिया फिर वो अवस्था को जानता है। सतगुरु धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी अंदर एक और बचन बड़ा प्यारा बाबा कबीर जी का ही होता है। तो बाबा कबीर जी ने आख्या कि प्यारे जे तेरे अंदर ये लालसा तू कहना ना भी मैनू वो अवस्था बारे थोड़ा दसो। तो कह लगे तेन एक झलक विखा सकदा, बस एक झलक, तां जो तू भी उहदे चरण कमलों नाल जुड़ जाए, एक झलक तेन विखा देगा। तो बाबा कबीर जी आखते ने आ मैं तेन विखावा। कह लगे राज सी सिकंदर लोधी का। जब बाबा कबीर जी ने इस देश में राज किहदा सी, सिकंदर लोधी का। ते सिकंदर लोधी को शिकायतां कीतियां जिहड़े बाबा कबीर जी तो ईर्खा करते सन, जिहड़े पखांडी लोग सन, जिहड़े भेखी लोग सन, उन्होंने जाके शिकायतां कीतियां। कह लगे भी कबीर साहब तां धर्म की बेपत्ती करते हैं, वो बेअदबी करते हैं, वो खुदा नूं नहीं मनते, वो धर्म मंदिरां नूं नहीं मनते, वो इन्हां नूं चलाउण वालियां नूं नहीं मनते, वो काज़ियां नूं, वो इन्हां धार्मिक मसीतां नूं या इत्थों दे बैठे हुए मंदिरां विच पुजारियां नूं वो बाबा कबीर जी नहीं मनते। क्यों? बाबा कबीर जी तां कह दिंदे ने भी भलिओ तुसीं केवल तां केवल वेश तां धारण कीता है, पर इहदे पिछे भेख भी बनाया होया है। तो जदों सिकंदर लोधी को शिकायतां गईयां तो उन्हें आख्या भी ऐसा मनुख मेरे राज विच ते जिहड़ा साडे धर्म दी
इस तरह बेअदबी करता होवे ते बाबा कबीर जी नूं गिरफ्तार किया गया। हुण आपां सामने इक्को तस्वीर विखाई जाती भी भगत सिर्फ भगती करते हैं चौंकड़ी मार के, नहीं। हुण वेखो बाबा कबीर जी का जीवन जिहड़ा वो केवल चौंकड़ा मार के राम नाम की भगती नहीं करने वाला, बल्कि जे समा पिया तो कुर्बानी देने लई भी तैयार है। बाबा कबीर जी के हथ पैर बेड़ियां जंजीरां नाल बन दिते गए तो उन्होंने हुक्म होया भी इन्हों गंगा में सुट दिता जाए। बनारस के रहने वाले गंगा नेड़ियों लंघती सी, कहणगे इन्हों गंगा में सुट दिता जाए। जदों लगे सुटन ते बाबा कबीर जी ने उन्हें पूछया, जेड़े इस्लामक मत वाले सन उन्होंने तो की पूछना सी क्योंकि वो मानते नहीं सन, पर जेड़े हिंदू लोग सन, पुजारी लोग सन, उन्होंने पूछ लिया बाबा कबीर जी ने, कहणगे गंगा में बड़ा पवित्र मानते हो तो तुसीं इत्थे आके अपने पाप धोंदे हो, गंगा तुहाडे पाप धोंदी है, पर अज तुसीं एक रब दे प्यारे नूं गंगा विच डोब के गंगा कोलों पाप लगे हो कराउण। गंगा दे पाप धोंदी है ना, ते तुसीं एक रब दे प्यारे नूं सुट्टण लगे हो, विच मारन लगे हो ते गंगा कोलों लगे हो पाप कराउण। पर उन्होंने बाबा कबीर जी नूं सुट दिता विच। जदों विच सुटिया ते बाबा कबीर जी आखदे मेरे नाल की भाणा वरतिया, तां उन्हां दा बचन आउंदा है, गंग गोसायण गहर गंभीर। गंगा बड़ी डूंगी सी ते बड़ी तेज वगदी सी। गंग गोसायन गैर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। मन न डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे समाए। अगला उन्हें बचन किया, कहणगे प्यारिया जे तू कहना है भी कबीर नूं तू पानी में डोब के खत्म कर देवेगा, पर तेनू इस गल का पता नहीं कि वो मालिक गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। कह कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। जेड़ा पानी ते धरती विच रखिया करन वाला अकाल पुरख है, जिन्ना चिर उहदे चरण कमलों नाल मैं जुड़िया, दुनिया की कोई ताकत नहीं मैनू डोब सके, मैनू खत्म कर सके। यह है चरण कमलों का एक बुलारा जिहड़ा बाबा कबीर जी ने दस्सिया। वैसे कहणगे बयान नहीं किया जा सकता, पर जिहड़ा जुड़ गया फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं भी उन्हें मिटा सके। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने चरण कमलों की परिभाषा बड़ी प्यारी सामने रखी। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने पूछया, समय के चरपटनाथ जोगी ने तुसी बाणी पढ़ियो, जदों रामकली राग पढ़ोगे तो उस अंदर एक बाणी आती है सिद्ध गोष्ठ, जिंदे विच जोगियां नाल गुरु नानक साहब पातशाह जी की वार्तालाप हुई, गोष्ठ चर्चा हुई। ते सामने बैठा चरपटनाथ जोगी गुरु नानक साहब नूं सवाल करदा है, ऐ नानक तुसीं कहंदे हो दुनिया में रह के रब की प्राप्ति की जा सकती, पर कह लगे असीं ते नहीं मनते क्योंकि दुनिया में रहा बंदा संसार के जंजालों में फसिया रहा। भगती कित्थे हुंदी, नाम कित्थे जपिया जाता, इबादत कित्थे की जाती है, तो किवें परमात्मा के चरणों में जुड़ के बंदा इस दुनिया की वकारां दी लहरां विचों बच जाए। तो उन्हें सवाल किया, पहला दुनिया सागर दुत्र कही है, क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले औ नानक देव सच्चा विचारो। चरपट नाथ तुहानूं सवाल करता है, बाबा नानक जी दसो दुनिया में रह के किवें रब नूं पाया जाता है। तो बाबे नानक ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, कहणगे जैसे जल में कमल निरालम। कभी कमल का फुल वेखे कि किवें पानी में खिड़िया रहता है, चिक्कड़ में पैदा होता है पर कभी मैला नहीं होता। जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई ने साने। मुरगा भी एक पंछी है पानी में, वो भी पानी में तैरती पर कभी खंभा नूं मैला नहीं होने देती। कमल खिड़दा चिक्कड़ में पर कभी मलीन नहीं होता। इस तरह बाबे नानक ने आखिया, जिदन अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ लवेगा तो याद रखी फिर दुनिया में रहिंदा होया भी कभी मैला नहीं होगा, अंदरों निर्मल होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। कदों जदों चरण कमलों नाल जुड़िया होगा परमात्मा के। शब्द सुरत भव सागर तरीए, संसार विचों किवें तरिया जा सकता है। सुरत शब्द, जदों सुरत का सुर ते शब्द का सुमेल हो जाएगा। साडी सुरत तुरती नहीं शब्द के नाल। कारण की है? कारण यह है कि साडी सुरत अजे तक फसी विकारां च, वो कभी शब्द वाले पासे प्रेरित नहीं करती।
ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 10,000 ਫਿਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ